پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا۔ گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے نئی کہانی دیوانہ ابلیس۔ موڑ تو اس نے بڑی احتیاط اور مہارت کے ساتھ کاٹا تھا، مگر ٹرن لے کر جو ہی اس نے سٹیئرنگ کو بائیں طرف حرکت دی، اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ سامنے سے آنے والا موٹر سائیکل سوار ایک دم ہی غیر متوازن ہوا اور سیدھا اس کی کار کی طرف تیز ہو گیا۔ اس نے بے اختیار پیر پیر کا دباؤ بریک پر ڈال دیا۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جبھی موٹر سائیکل سوار نے بمشکل خود کو سنبھالا اور تقریباً اڑتا ہوا اس کی دائیں طرف سے زوں کی آواز کے ساتھ نکل گیا۔ کار کے ٹائر چرچرائے اور اس نے گاڑی سائیڈ پر کر کے روک لی۔ ارد گرد سے کئی لوگ بے اختیار اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دوسری سواریوں کو روک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ رومال سے پسینہ صاف کرتے ہوئے مڑ کر بیک مرر سے موٹر سائیکل سوار کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دل اب بھی بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ایجریٹن روڈ کی مصروف ترین سڑک تھی، جس پر صرف رات 12 بجے کے بعد ہی ٹریفک کا ہنگامہ کم ہوتا، ورنہ صبح 5 بجے سے آدھی رات تک یہاں ہر وقت گاڑیوں کے ہارن اور رکتے بڑھتے ٹائروں کی چیخیں سمے خراشی کرتی رہتی تھیں۔ ایک آدھ منٹ بعد ہی سب کچھ نارمل ہو گیا۔ لوگ باغ اسے بھول کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ سارجنٹ اگلے چوک میں تھا، اس لیے اسے اس نے نہ ہو سکنے والے حادثے کی خبر ہونا ممکن نہ تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا، رومال کوٹ کی جیب میں رکھا، دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ایسی جگہ رکا تھا جہاں سے ٹریفک میں کوئی خلل واقع نہ ہو رہا تھا، ورنہ اب تک اسے بے شمار عجیب و غریب القابات اور ہدایات سے واسطہ پڑ چکا ہوتا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے دل کی دھڑکن پر دھیان دیا، جو اب خاصی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں روشنی کی ایک لکیر سی لہرائی۔ پھر یہ لکیر ایک میلی کچیلی چھیتروں میں ملبوس فقیر عورت کے مکروہ سراپے میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس نے ایک جھرجری سی لی اور سر کو جھٹک کر اس بدہیبت شبیہ سے تصور کو خالی کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ تو اپنی غیر انسانی آواز کے ساتھ اس کے پردہ ذہن پر چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے تنگ آ کر دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو زور سے مسلا، پھر بے معنی الفاظ بڑبڑاتے ہوئے اگنیشن میں چابی گھما دی۔ چند لمحوں کے بعد اس کی سرخ چمچماتی کار ٹریفک کے ہجوم میں یوں دوڑتی چلی جا رہی تھی جیسے احتیاط کا دامن اس نے بڑی مضبوطی سے سپیڈو میٹر کے پلو سے باندھ دیا ہو۔ اس کی تیزی میں بھی ایک ٹھہراؤ تھا۔ اب وہ کسی موڑ پر کسی سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ 15 کی بجائے 25 منٹ میں گھر پہنچ جائے، جہاں اس کی اکلوتی اور حسین بیوی شمع بے تابی سے اس کی منتظر تھی۔ سہراب عباسی 23 سال کا ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا۔ 2 سال پہلے اس کے ماں باپ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور دور و نزدیک کا کوئی ایسا رشتہ دار بھی موجود نہیں تھا جو اس کے لیے درد سر بنتا۔
इसलिए बाप के जमे जमाए कारोबार को रानों तले घोड़े की तरह ले लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि अरसा 6 माह से वो अपने बाप को वैसे भी असिस्ट कर रहा था। अपर क्लास का करोड़पति सोहराब अब्बासी बेशुमार लड़कियों के लिए गुड़ की इस किस्म से ताल्लुक़ रखता था, जिस पर बड़ी तो बड़ी छोटी मक्खी भी खिलाफे फितरत आ बैठने में कोई हर्ज ना समझती थी। मगर उसे न जाने क्या हुआ कि एक दिन इंटरव्यू के लिए आई हुई एक 21-22 साला लड़की शमा ज़ुबैरी को उसने आधे घंटे की कारोबारी गुफ्तगू के बाद सेक्रेटरीशिप की बजाय होम वाइफ का ओहदा ऑफर कर दिया। शमा ज़ुबैरी पहले तो उसे होनकों बल्कि अहमकों की तरह देखती रही, फिर जब वो ज़रा हवास में आई और धीरे धीरे उसके दिमाग ने ज़मीन पर कदम रखा तो उसने एक बार फिर शऊर को टटोला। वहाँ सोहराब की ऑफर अभी तक दमक रही थी। सर, आपने क्या कहा? वो खासे सर्द लहजे में बोली। जो आपने सुना मैंने वही कहा है मिस ज़ुबैरी। सोहराब ने उसकी नीली आंखों में झांकते हुए कहा। देखिए, उसने उसके तप जाते हुए चेहरे को नज़रों के अहाते में कैद रखकर हाथ उठाया और शमा के कुछ कहते हुए होंठों को खामोश कर दिया। मेरी बात को किसी भी गलत सिमत में ले जाने से पहले मेरी वजाहत सुन लीजिए। उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मैं उसे गालियों समेत चुपचाप कबूल कर लूँगा। शमा ना चाहते हुए भी उसकी बात सुनने पर तैयार हो गई, मगर वो अब भी उसे बड़ी सर्द नज़रों से घूर रही थी। मैं एक अय्याश क्लास से ताल्लुक़ रखते हुए भी एक हद तक नहीं खासा शरीफ आदमी हूँ। आप अपने तौर पर मेरे बारे में अपने वालदैन या किसी भी और ज़रिए से तस्दीक कर सकती हैं कि मैं जो कहूँगा वो बिल्कुल सच होगा। मिस शमा, मैं अपने वालदैन का इकलौता बेटा हूँ। उनका 2 साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो चुका है। मैं अपने कारोबार का बिला शिरकत गैरे अकेला मालिक हूँ। करोड़पति हूँ। चंद सालों के बाद शायद अरबपति हो जाऊँगा। मगर इस सब के पीछे जो खौफ और अंदेशा फन खाड़े खड़ा है, मैं उसके डर से आपको प्रपोज करने पर तैयार हो गया हूँ। वो एक लम्हे को रुका। शमा उसे बेदस्तूर घूर रही थी, मगर अब उसकी नज़रों की बर्फ़ पिघलती हुई महसूस हो रही थी और उसकी तय में झांकती हुई दिलचस्पी को सोहराब की स्याह आंखों ने भी महसूस कर लिया था। मिस शमा, वो दोबारा गोया हुआ। मैं उमरा के जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ जिनसी ताल्लुकात जायज़ या नाजायज़ हद तक कोई ख़ास मायने नहीं रखते। मैं अपनी बेबाकी के लिए माजरत खवा हूँ, मगर मैं लगी लिपटी रखूँगा तो अपना माज़ी ज़मीर वाज़े नहीं कर सकूँगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरी क्लास की बेशुमार लड़कियाँ मुझसे शादी के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाए बैठी हैं। उनके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें बाइसे कशिश हैं। एक मेरी दौलत जो पहले नंबर है और दूसरी मेरी जवानी, और माफ़ कीजिएगा कि किसी हद तक मेरी खूबसूरती जो सानवी हसीयत रखती है। ज़ाहिर है कि यह हर लड़की की ज़रूरत और ख्वाहिश है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मगर मिस शमा, मेरी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि मैं तो अपनी दौलत के बल पर जब चाहूँ जैसी चाहूँ जवानी हासिल कर सकता हूँ और ये खेल अकेला रहकर ज़िंदगी भर खेल सकता हूँ। मगर जब मैं शादी के लिए इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे एक भी ऐसी लड़की दिखाई नहीं देती जो शादी के बाद सिर्फ मेरे लिए वक़्फ़ होकर रह जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लड़कियां उस वक़्त मुझ पर दांत लगाए बैठी हैं वो मेरी ही क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। वो इसी दौलत के बल पर आज़ादी नस्वां का इश्तहार बनी फिरती हैं।
جس کی زیادتی ان کو میری طرف مائل کر رہی ہے۔ کم یا زیادہ وہ بھی میری ہی طرح دولت کے ڈھیر پر بیٹھی ہیں۔ میں یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی بن کر آنے والی لڑکی کا زندگی میں قدم رکھنے والا میں پہلا مرد ہوں یا نہیں۔ وہ اس بار تقریباً آدھے منٹ کے لیے رکا۔ اس نے شمع کا بھرپور جائزہ لیا۔ وہ ایک آئیڈیل لڑکی تھی اور اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی سوچ کے سائے یوں اتر رہے تھے جیسے شام کے جھٹپٹے کے شفق رنگوں میں پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف نیچی پرواز کر رہے ہوں۔ آپ میری بات سن رہی ہے نا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے چونکے بغیر آہستہ سے اپنی گھنی پلکیں اوپر اٹھائیں اور سہراب کا دل زور سے دھڑک کر رہ گیا۔ آپ کہتے رہیے، میں سن رہی ہوں۔ سہراب نے اس کی آواز میں نرمی محسوس کی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں کافی… جی نہیں، ابھی نہیں، شمع نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ فی الحال آپ اپنی بات ختم کیجئے، اوکے؟ اس نے ندامت کی بجائے عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ شمع کا کردار اس کے ہر رویے سے جھلک رہا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا مس شمع، اس ساری صورتحال میں مجھے شادی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میرے والدین ایک آئیڈیل جوڑے کے روپ میں ساری زندگی میری نظروں کے سامنے رہے۔ میں عیاشی کر سکتا ہوں جب تک چاہوں، مگر انجام کار کیا؟ ایک دن جب مجھے اپنی تنہائیوں کے ساتھی کی ضرورت پڑے گی، ایسے ساتھی کی جو گھر لوٹنے پر مجھے ہر تھکن سے آزاد کر دے، ہر فکر سے دور لے جائے، تب شاید میں عمر کے اس حصے میں ہوں گا جب ایسا ساتھی مجھے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکے گا۔ دیکھیے نا، تب یہ معاملہ ہو جائے گا کہ یہاں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ اس نے شعر میں اپنا ماضی ضمیر بیان کیا اور شمع کو زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ سنگ دیکھ کر مزید کہا، آج آپ کو جاب کے لیے آئے ہوئے دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا مجھے اب دیر یا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور میں لکیر پیٹتا رہ جاؤں۔ مس شمع، آپ صرف خوبصورت ہی نہیں ہیں، آپ میں ایک وقار اور گریس ہے جس نے مجھے دل کی گہرائیوں سے آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو کسی بھی دفتر میں سیکرٹری کی کرسی پر اٹینشن بیٹھے دیکھنے کی بجائے ایک خوبصورت گھر کی مالکہ کے روپ میں دیکھنا چاہوں گا، اور یہ گھر اگر میرا ہو تو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ میری بات ختم ہوئی، اب آپ کا جو بھی فیصلہ ہو میں منتظر ہوں۔ شمع نے سہراب کی طرف دیکھا تو اس بار اس کی نظریں بالکل سپاٹ تھی، ہر تعصب سے خالی۔ سہراب صاحب، آپ کی ساری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ کو کلبوں میں اڑتی پھرتی تتلی کی بجائے شمع خانہ چاہیے، جس سے آپ اپنا دل بھی روشن کر سکیں، اور اس کے لیے آپ کی نظر انتخاب سیدھی مجھ پر پڑی اور 1 سیکنڈ لگائے بغیر آپ نے مجھے پرپوز کر دیا۔ 1 منٹ، یہاں آپ غلط ہیں، سہراب نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے پورا آدھا گھنٹہ آپ کا انٹرویو کیا، پھر پرپوز کیا۔ کیا آپ کے ہاں سیکنڈ کا پیمانہ 30 منٹ کا ہوتا ہے؟ جی نہیں، سوری، شمع نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ چلیے آدھا گھنٹہ ہی صحیح، لیکن کیا آدھے گھنٹے کی نشست 2 زندگیوں کا دائمی فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے؟ نظر، صرف ایک نظر کافی ہوتی ہے مس شمع، سہراب نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ شربت کی مٹھاس معلوم کرنے کے لیے آپ پورا گلاس تو نہیں پیتی، محض چند قطروں یا 1 گھونٹ سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ چلیے یہ بھی مانا، لیکن میں پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ میں نے کب محبت کا ذکر کیا ہے؟ سہراب نے حیرت سے اس کی بات کاٹ دی۔ تو اب تک آپ مجھے کیا رام لیلا سنا رہے تھے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ نہ مس شمع، زیادتی نہ کریں، دیکھیے
अगर मैं शादी से पहले मोहब्बत करूंगा तो शादी के बाद क्या करूंगा? मैंने सिर्फ आपको पसंद किया है। अगर आप खुदा करे कि मेरी बीवी बनकर मेरे घर तशरीफ़ ले आएं, तब मैं मोहब्बत शुरू करूंगा और मरते दम तक करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत होगी जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा आपको हो ही नहीं सकता। बस वो सुर्ख हो गई। तमतमाए हुए चेहरे पर एक ऐसा हसीन गुबार चमक रहा था जिसने सोहराब की रही सही दुनिया भी लूट ली। आप बातों बातों में वो कह जाते हैं जो शायद दूसरा सुनना भी ना चाहे। सॉरी, वो वाकई शर्मिंदा हो गया। उसने बेतकल्फ़ी की सारी हदें ही फलांग डाली थी। वेरी सॉरी। बहरहाल सोहराब साहब, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ, बर की तलाश करने नहीं। ये मेरे वालिदैन का शोबा है जिनकी मैं एक ही बेटी हूँ, और ये जॉब भी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मेरे वालिद सैनिटोरियम में हैं। ये आप मुझे बता चुकी हैं। सोहराब ने उस जिक्र से बचना चाहा। सिर्फ ये बात नहीं है कि आप मेरी तरह अकलौती हैं। जी आगे कहिए। सोहराब साहब, आपका क्या ख्याल है, हर लड़की की डिमांड या तलब दौलत ही होती है? देखने में तो यही आया है कि हर लड़की अपने लिए अच्छा और खुशहाल शोहर चाहती है, मगर मुझे अपने लिए सिर्फ दौलत ही नहीं, बाएतमाद और आईना नुमा शोहर चाहिए। सोहराब साहब, अगर आपकी कुछ तवक्कात हैं तो क्या फरीके सानी कोई ख्वाहिश नहीं रख सकता? क्यों नहीं? वो संभल कर बैठ गया। आप फरमाइए कि शायद मैं आपके मेयार पर पूरा उतर सकूं, शायद, और अगर पूरा ना उतर पाए तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी मिस शमा, शरीफाना माहौल और उस वादे के साथ कि आप जब तक इस इदारे में रहेंगी मेरी तरफ से कभी आपको किसी ऐसी हरकत का सामना नहीं करना पड़ेगा जो किसी भी तवक्का के लिबादे में लिपटी हुई हो। तो सोहराब साहब, शमा ने हतमी और फैसला कुन लहजे में कहा, मैं जिस तरह खुद अनछुई हूँ, मुझे ज़िंदगी का साथी भी वैसा ही चाहिए। पहली और आखिरी तलब है मेरी कि आप इस म्यार पर पूरा उतरते हैं। और सोहराब अब्बासी का चेहरा मतगैर हो गया। उसकी आंखें बुझ सी गईं। उसने बेचैनी से पहलू बदला। सर्दी के मौसम में भीग जाने वाली पेशानी को टिश्यू पेपर से पूंजा और शमा की तरफ देखकर नजरें चुरा लीं। वो उसे बड़ी नोकीली निगाहों से देख रही थी। लगता है कि मैंने गलत सवाल कर दिया। नहीं मिस शमा, उसने एक आह भरी सांस ली। जवाब गलत हो गया। यानी मैंने बताया ना कि मैं जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें जिस्मानी ताल्लुक़ की हदें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ ख़त्म। इसकी कोई इब्तदा है ना इंतहा। फिर मैं कैसे समझ सकता था? वेरी सॉरी, मैं गवारा नहीं हूँ। शमा ने उसकी बात उचक ली और सोहराब अब्बासी ने सर झुकाकर असबात में सर हिला दिया और उसके चेहरे पर नाकामी और मायूसी की जर्दी फैल गई। शमा उसे बड़ी दिलचस्प नज़रों से घूर रही थी। चंद लम्हे एक अज़ियतनाक खामोशी की आगोश में गुजर गए। फिर जैसे कमरे में धमाका सा हुआ। काफ़ी मंगवाइए। एक झटके से सोहराब ने सर उठाया और उसकी आंखों से बेएतबारी मतरशे थी। शमा मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन ना आ रहा था। उसने कुछ कहना चाहा मगर हलक सूख गया। होंठ कपकपा कर रह गए। उसने महसूस किया कि जैसे उसकी आंखों में हल्की सी धुंध फैल गई है। उसने दोनों हाथों से आंखों को जोर से मला। उंगलियां गीली हो गईं। उसकी हलक में दर्द का जो एक छोटा सा गोला फंसा हुआ था वो फट गया। उसका चंद कतरों पर मुश्तमिल मवाद आंखों ने उगल दिया। वो एकदम कुर्सी से उठा। मैं अभी आया। बमुश्किल सरगोशी उसके लबों से आज़ाद हुई और वो साइड बाथरूम में घुसता चला गया। शमा ने कुछ सोचते हुए जिस्म को कुर्सी पर इजी किया और दोनों हाथ सर के पीछे बांध लिए। तकरीबन 30 मिनट के बाद सोहराब अब्बासी बरामद हुआ तो उसके पपोटे मतवरम थे और चेहरा निखरा पड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और सकूत छाया हुआ था। वो अपनी कुर्सी पर आ बैठा, इंटरकॉम पर 2 कप कॉफ़ी के लिए कहा और ज़रा सी झिझक के साथ शमा की तरफ देखा।
मैं शर्तें मनवाने के हक में ना कभी रही हूँ ना कभी रहूँगी, मगर एक बात तय है, मैं सुन रहा हूँ। वो उसे बेहद वालहाना अंदाज में तक रहा था। आज अभी इसी लम्हे से आप सारी दुनिया की औरतों के लिए अजनबी हो जाएंगे, हमेशा के लिए। उसने हाथ मेज पर रख लिए। मैं कसम खाता हूँ। सोहराब ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ छू लिया। शमा का सारा जिस्म लर्ज गया। और कुछ नहीं, उसने हाथ खींच लिया। उसी वक्त चपड़ासी ने दस्तक दी। कम आन। सोहराब ने सामने रखी फाइल खोल ली। चपड़ासी ने दोनों के सामने काफ़ी के मग रखे और लौट गया। काफ़ी बेहद खामोशी से पी गई। मैं अब चलूंगी, उसने खाली मग मेज़ पर रखते हुए कहा। तो अब आइंदा का वो गड़बड़ा कर रह गया। परसों मैं आपको फ़ोन करूंगी सुबह 10 बजे। ओके। वो खड़ा हो गया। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं ताकि सारे दफ्तर को आज ही पता चल जाए, वो तनन से बोली। और बेइख्तियार वो वापस कुर्सी पर बैठ गया। सॉरी, ये मुझे क्या हो रहा है, ऐसी बद एहतियाती। ओके, वो मुस्कुरा दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो उसे दरवाजे की तरफ जाते हुए देखता रहा और उसका दिल फड़फड़ाता रहा। वो चली गई। 2 रातें और 1 दिन उसने बड़ी मुश्किल से गुजारा। तीसरे दिन उसका फ़ोन आया। चौथे दिन शमा की वालदा उससे मिलने आई। उसके घर पर बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू हुई। वो शमा की पसंद और सोहबाब के रवैये से मुतमिन नजर आई थी। 7वें दिन जब चंद अहबाब की मौजूदगी में दोनों का निकाह हुआ, शमा सोहराब के घर में शमा खाना बनकर यूं दाखिल हुई कि उसकी रूह तक रोशन हो गई। वक़्त इतनी खूबसूरती से गुजर रहा था कि सोहराब के लिए दफ्तर और घर और शमा के अलावा कोई दिलचस्पी रह नहीं गई थी। वाकई उसने सच कहा था। उसने शादी के बाद मोहब्बत शुरू की थी और दिन ब दिन उसकी मोहब्बत शदीद तर होती जा रही थी। शमा खुद उसके लिए इतनी दीवानी हो चुकी थी कि दोनों का एक दूसरे के बगैर एक पल काटना मुश्किल हो गया था। 1 साल होने को आया था, मगर लगता था उनकी शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा हो। वही शिद्दत, वही चाहत, वही वराफ्तगी और वही सारी दुनिया से बेगानगी जो नए नवेले मोहब्बत के मारों के मिलन के बाद तर्राए इम्तियाज़ होता है, उन पर सहर बनकर छाया हुआ था। फिर शमा के वालिद अपनी बीमारी से जांबर ना हो सके और दुनिया से रुखसत हो गए। सदमा बेहद अजियतनाक था, मगर सोहराब ने शमा और उसकी वालदा को यूं समेट लिया कि कोई सगा बेटा समेटता। वो शमा की वालदा मिसेस ताहरा फसीहुद्दीन को अपने घर ले आया। शमा ने उसके दबे लफ्ज़ों में मुखालफत की, मगर वो ना माना। शमा भी ये सोच कर ज़्यादा ना अड़ी कि अकेली माँ के पास रहकर ज़्यादा अच्छी तरह ख्याल रखा जा सकता है। ताहम सोहराब ने उनकी ख्वाहिश पर एनेक्सी में उनको एडजस्ट कर दिया। वो हर वक्त बेटी और दामाद के साथ रहने को मायूब जानती थीं। वो कतन लापरवाह नहीं था, मगर आज जब वो दफ्तर से गाड़ी में घर के लिए निकल रहा था तो अचानक किसी तरफ से एक बूढ़ी फकीरनी उसकी तरफ लपकी। अगर वो बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो वो यकीनन गाड़ी से टकरा जाती। गुस्से से उसने बुढ़िया की तरफ देखा और कराहत से उसका मुंह फिर गया। वो इतनी ही बदहैबत थी कि अल अमान, बाबू तेरे बच्चे जिए। उसने परत से 5 का नोट खींचा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। साथ ही बेइख्तियार उसके लबों से निकला, अगर बर वक्त मैं ब्रेक ना लगाता तो तुम नीचे आ चुकी थी माई। देख कर गाड़ी पर लपका करो, तुम लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। अरे जा बाबू, बुढ़िया ने नोट लपकते हुए कहा। मर गए मुझे मारने वाले, अभी मेरा वक़्त नहीं आया। ला हौला वला कुव्वत। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इतनी पहुंची हुई हो तो मांगती क्यों फिरती हो माई? कहीं कोई शुभदा घर खोल लो। उसने गाड़ी आगे बढ़ाना चाहिए। ठहर जा, बुढ़िया ने बदतमीज अंदाज में उसे टोका कि वो गुस्से से बल खाकर रह गया। क्या कहा तूने? मैं तुझे शोभदाबाज दिखाई देती हूँ? अभी ले। वो आपे से बाहर होते हुए बोली, ले
अब तू खैर खैरियत से घर पहुंच जाना बाबू। वैसे उसकी उम्मीद कम है, घर जाकर सोचना। तुझे मेरे शोभदाबाज होने और ना होने का यकीन डामाडोल कर देगा, समझा? अब जा। मोड़ पर तेरी किस्मत तेज हवा में जलता हुआ दिया लिए तेरा इंतजार कर रही है। बको मत, वो तैश से बोला और गाड़ी को गियर में डाल दिया। बुढ़िया जोर से हंसी और उसकी मकरू हंसी दूर तक उसका पीछा करती रही। फिर जब एक मोड़ पर उससे एक मोटरसाइकिल टकराते टकराते बची तो उसका जहन कलाबाजी खाकर रह गया। वो तवाहम परस्त नहीं था, मगर बुढ़िया की बकवास पर गौर ना करना भी उसके लिए नामुमकिन था। उसने एक मोड़ का जिक्र किया था और मोड़ मोड़ते हुए ही उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। उसका जहन मुसलसल उस मकरू बुढ़िया के सरापे और उसकी बेसरूपा मगर हैरत अंगेज हद तक सच होने वाली बात में उलझा हुआ था। उसने बड़ी कोशिश की मगर सारा रास्ता वो बुढ़िया के तसव्वुर से पीछा ना छुड़ा सका। अपनी कोठी के गेट पर कार रोकते हुए जब उसने हारन दिया और चौकीदार ने उठकर गेट खोला, तब भी वो बुढ़िया के ही ख्यालों में गुम था। मगर गाड़ी को गेट के अंदर दाखिल होना था कि उसके उलझे हुए दिमाग पर कोफत तो तवाहम और अंदेशों की सारी गिर्द छटती चली गई। सामने बरामदे में खड़ी शमा ने उस गाड़ी को देखते ही जैसे उसकी तरफ दौड़ लगा दी थी। उसकी बेताबी पर वो मुस्कुराकर रह गया था। डैशबोर्ड में नस्ब घड़ी में वक्त देखा। वो एहतियात से गाड़ी चलाने के चक्कर में पूरा 15 मिनट लेट था। उसने गाड़ी से बाहर कदम रखा और बेताबाना बढ़ती चली आती शमा को बाजुओं के घेरे में ले लिया। ये चंद मिनट की देर क्या हसीन अंजाम साथ लाई थी।